Hi friends, in today's session we'll start with this atomic spectrum. So first of all we'll define the word what actually means by spectrum. Now spectrum is all about when a light fall on a surface of prism. So monochromatic light is converted into polychromatic light and you get the 7 different color bands. 7 different color bands are observed, that is nothing but spectra. So when a ray of white light passes through the prism, we get a series of colored band called spectrum. This spectrum is called continuous spectrum. That is called VIBGYOR. You can see in this figure, we'll put it as a source of light. Light fall on a surface of prism and prism gives you the 7 different color band that is entitled as a spectra. Lowest is violet, then you have indigo, then you have a blue, then you have a green, then you have a yellow, you have a orange, and first is red. That is nothing but the VIBGYOR. So here in case high density light is there, fall on the surface of differential grating. Gratings are nothing but the prism, and for prism you get the continuous spectra. Continuous spectra is nothing but the, you can say that, spectra. Because here violet merge into this blue and blue merge into this green and so on. Similar, the electromagnetic radiation interact with matter, atoms and molecule and maybe absorb energy and reach to this higher energy level unstable state. To attain the stability, they emit the radiation to form a spectra. Such spectra is known as atomic spectra. Now we'll move on to this what actually means by atomic spectra. Atomic spectra is all about when atom, here in case atom is in ground state, that up arrow stands for the outermost electron. When you hit this component or when you irradiate it, by means of source you irradiate it, this electron acquires some amount of energy and goes to the GS का मतलब होगा ground state. Acquires some amount of energy from the ground state and goes to this excited state. Now excited state is highly unstable state. Electron cannot sustain for a longer period, come back to the ground state by releasing delta E energy. That delta E energy is nothing but emission. Emission amount of energy, that is entitled as emission energy. That is, you can get a emission spectra. बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो if I crack a joke in a class, fine, so each and everyone start laughing, but जो लाफ्टर का रेंज है वो सभी का अलग अलग होगा. Why? Because किसी को बहुत ज्यादा मजा आया होगा, किसी को कम मजा आया होगा और किसी को ज्यादा मजा नहीं भी आया होगा. So each and every atom having a different excitation level. So आप क्या continuously हंसते ही रहोगे? नहीं. You come back to the normal state also by releasing some amount of energy. Some amount of energy is nothing but noise of laughter, that is entitled as amount of energy you release from the body. So here in case also atom is in ground state, is really very stable state. If you hit it or if you irradiate it, means by any means you apply some amount of energy, then that energy acquired by this outermost shell electron, the electron acquires some amount of energy, goes to ground state to this excited state. Now excited state is not at all permanent state. आप क्या हंसते ही रहते हो? No. एक fraction of second के बाद, एक fraction of portion के बाद आप normal state पे वापस आ जाते हो. So here in case atom cannot sustain for a longer period. This is your excited level. Now they release some amount of energy and come back to the ground state. Means जो laughter का noise है, laughter का जो voice है, वो लेवल आप रिलीज करके फिर से आप क्या हो जाते हो? शांत हो जाते हो, जैसे पहले थे ऐसे हो जाते हो. That release amount of noise or laughter is entitled as you remove some amount of energy. Likewise here in case also this electron release some amount of energy. That energy is maybe a same, maybe a different. जो ज्यादा हंसेगा वो ज्यादा आवाज निकालेगा, जो कम हंसेगा उसमें से आवाज बहुत कम आएगी. So each and every different having a different excitation level and different delta E value. Few having really very high delta E and few having really very small delta E. ये जो मेजर करने की पूरी केमिस्ट्री उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. The branch of the science where we deal with this emission and absorption
of energies of electron is known as spectroscopy. तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेक्ट्रा, एंड स्पेक्ट्रा करने वाली, मेजर करने वाली केमिस्ट्री को बोलेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो अब हम मूव होने जा रहे हैं व्हाट एक्चुअली मींस बाय इमिशन स्पेक्ट्रा, व्हाट एक्चुअली मींस बाय एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इमिशन स्पेक्ट्रा. इमिशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया वही हम सबसे पहले पढ़ेंगे. The spectra of radiation emitted by the substance, the spectra of radiation emitted by the substance that has absorbed energy is called emission spectra. Once again, the spectra of radiation emitted by a substance, ये एनर्जी किसने रिलीज की हुई है? ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस था उसके इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एक्वायर की वो हायर स्टेट पे गया, हायर स्टेट पे लॉन्गर पीरियड नहीं रुक सका, कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, the releases some amount of energy. So that is entitled as emission spectrum. Atom, molecule or ion that have absorbed radiation are said to be this excited. That are said to be excited. To produce an emission spectra, energy is supplied to a sample by heating it or irradiate it. हमने क्या किया? बाय हीटिंग इट, या फिर आप बुंशन बर्नर पे उसको गर्म कीजिए, या फिर इरेडिएशन, माइक्रोवेव के जो रेडिएशन होती है या फिर कोई भी हायर एनर्जी लेवल के रेडिएशन होते उसको आप इरेडिएट कीजिए. वंस अगेन, टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रा, ये इमिशन कब होगा? जब वो एब्सॉर्ब करेगा कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी. एब्सॉर्ब कहां से करेगा? व्हेन यू हीट इट और इरेडिएट इट. टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी सप्लाइड टू द सैंपल बाय हीटिंग or by irradiating it, and the wavelength of this radiation emitted is record. और जब वापिस आते हैं तब जो wavelength पे वो एनर्जी रिलीज करता है that has been recorded. An absorption spectrum is just like a photographic negative of emission spectra. अब ये देखिए ये क्या है absorption spectra. अब absorption spectra and emission spectra के बीच में डिफरेंस क्या है समझिए. देखिए सबसे पहली चीज ये क्या था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या था? व्हेन अ व्हाइट लाइट फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ प्रिज्म व्हिच गिव्स यू दिस 7 कलर लाइट. 7 कलर लाइट इज नथिंग बट द विबग्योर. ये विबग्योर जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा. फर्स्ट लाइन. दिस इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, या फिर सिंपल स्पेक्ट्रा बोलोगे तो भी चलेगा. अब इमिशन स्पेक्ट्रा क्या था? इमिशन स्पेक्ट्रा था जब एटम जो था वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा एंड ग्राउंड फ्लोर से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा. सो दिस इज ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट बाय रिलीजिंग डेल्टा ई एनर्जी. तो ये जो एनर्जी आ रही है वो कौन सी है? तो ये जो एनर्जी रिलीज की वो है इमिशन स्पेक्ट्रा की. अब ये इमिशन स्पेक्ट्रा की जो लाइन है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के ऊपर डाल दोगे तो यू गेट अ व्हाइट लाइनिंग. That is known as absorption spectra. अब absorption का मतलब क्या होता है समझिए दोस्तों. आप सभी को पता है ब्लैक कलर absorb all the radiation from the sun and white color do not absorb anything. That's why nowadays there is a trend to purchase a white car rather than a black car. Why? Just because there is if you don't have any parking lot और perfect parking place नहीं है, अगर रोड साइड पे अगर आपको ब्लैक कार खड़ी रखनी है तो ब्लैक कलर जो है वो सारे के सारे रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेगा. नॉट अ सिंगल रेडिएशन इज इमिटेड. तो होगा क्या? अगर आप 1 घंटे के बाद कार ओपन करोगे यू फील लाइक यू आर पुट इट इनटू दिस ओवन में बैठे हुए हो ऐसा लगेगा. While in other case white does not absorb anything, emit everything. So here in case emission spectra के जो लाइन जो वेवलेंथ पे वो emit कर रहे थे वो continuous spectra पे रखोगे, means you put it this image to on continuous, so you get black color line. देखिए ये सारी की सारी जो लाइन है वो continuous के ऊपर रखी है तो you get white light. तो ये जो ब्लैक लाइनिंग जो मिल रही है वो ब्लैक लाइनिंग किसकी है? इमिशन की. रिमेनिंग स्पेक्ट्रा जो है वो क्या है? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के ऊपर व्हेन यू पुट इट अ इमेज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा you get a black line on continuous spectra that is entitled as absorption spectra. मीन्स ये जो ब्लैक लाइन जितनी लाइनिंग है वो लाइनिंग किसकी है? एटम ने एनर्जी एब्सॉर्ब करके इमिट की हुई है. दैट्स व्हाई दिस इज एंटाइटल्ड एज
एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वंस अगेन थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, फिर से फिगर के ऊपर जाएंगे। सो an absorption spectra is like a photographic negative of emission spectra. A continuous radiation is passed through the sample which absorb radiation of certain wavelength. The missing wavelength, like a dark space in the bright continuous spectrum, the study of emission and absorption spectra is referred to the spectroscopy. जो मैंने आपको पहले ही बताया, the branch of the chemistry where we discuss this emission and absorption spectra is known as स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से बहुत सारे एलिमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम इन द गैसियस फेज डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। द एक्साइटेड एटम इमिट लाइट ओनली एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ विद द डार्क स्पेस बिटवीन देम। सच स्पेक्ट्रा आर ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा ऑटम। अब देखिए बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्टों ने बहुत अलग अलग नाम दिए। किसी ने बोला लाइन स्पेक्ट्रा, अब लाइन स्पेक्ट्रा है वही एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो सर लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तीनों सेम है? हाँ दोस्तों, तीनों के तीनों सेम ही है। जस्ट बिकॉज अ एटम एक्वायर एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के ऊपर ब्लैक लाइन की तरह दिखाई देगी। तो ये एनर्जी किसकी थी? एटम की थी, इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यू गेट ब्लैक कलर लाइन ऑन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। एंड ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है, कौन इमिट कर रहा है? एटम। तो इमिट करने वाली फ्रीक्वेंसी के वजह से उसको बोला जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा ऑल्सो। तो ऑलमोस्ट अगर घूम फिर के बोले तो तीनों के तीनों चीज सेम ही है दोस्तों। लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा आर वेरी यूजफुल टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सभी स्टूडेंट का लाफ्टर लेवल अलग अलग होगा। शायद जो मैंने जोक क्रैक किया था क्लास के अंदर, किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो वो हंस हंस के लोटपोट हो रहा है, गिर रहा है। दूसरे को शायद इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा तो वो थोड़ा सा मीडियम हंस रहा है, और तीसरे ने शायद सुना होगा तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है दोस्तों। तो बेसिकली एटम के एक्साइटेशन सभी एटम के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो लाइन स्पेक्ट्रा आर रियली वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ईच एलिमेंट हैज द यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा. The characteristics line in atomic spectra can be used as a chemical analysis to identify the unknown atom in the same way fingerprint used to identify the people. जैसे ही मान लीजिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की ईच एंड एवरी एलिमेंट के स्पेक्ट्रा निकाले तो सभी के एक यूनिक स्पेक्ट्रा निकल के आए। अब जैसे यूनिक स्पेक्ट्रा आया, आप कोई अननोन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके सैंपल के अंदर की लाइन सोडियम की लाइन के साथ मैच हो रही है, तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि सर माय अननोन कंपोनेंट हैविंग सोडियम। जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट, कोई भी क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। मान लीजिए कोई क्राइम हो रहा है, क्राइम स्पॉट के ऊपर जो फिंगरप्रिंट मिल रही है वो डेटा के अंदर के XYZ के साथ मैच हो रही है, तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या होगा? ये क्राइम शायद XYZ ने अटेंड किया होगा। लाइकवाइज जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग देयर ओन लाइन स्पेक्ट्रम। सो आप कभी भी अननोन कंपोनेंट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हो, देन यू गेट सम काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा विच डेफिनेटली मैच विद द एग्जिस्टिंग वन। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके साथ आप मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अननोन कंपोनेंट है। सो लाइन स्पेक्ट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड, एक और नाम आ गया, फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम्स। लास्ट लाइन, सो द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो नोन एज fingerprints of atom. So this is all about a small topic. Generally 2 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what actually means by atomic spectra, what actually means by line spectra, what actually means by emission spectra.
सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन। फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। कौन कौन सी ड्रॉ करनी पड़ेगी? 2। सबसे पहले आप यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट दिखाइए, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। देन ग्रेटिंग्स की जगह पे प्रिज्म रख दीजिए एंड देन यू कैन गेट द डिफरेंट कलर लाइन। दैट 7 कलर लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए। सेकेंड, an atom having electron in ground state, if you are hitting or irradiated it, ground state से वो excited state जा रहा है, by releasing some amount of energy, that energy is nothing but E1, E2, E3 different level पे different frequency पे होगी, that is entitled as emission spectra। and simple आप ये spectrum draw, obviously you cannot use 7 different color, but you can use this is continuous spectra। on that you assume कहीं पे भी आप थोड़े से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, that is entitled as emission spectra। और जहां पे भी लाइन है वो continuous spectra के ऊपर एब्सॉर्ब होंगे, इसीलिए ब्लैक कलर की लाइन से दिखाइए, that is called as absorption spectra। so this is all about your atomic spectra, emission spectra, and you can say that last line हमने पढ़ा fingerprints of atom। so this is all